Hello students, today we continue our chapter Understanding Quadrilateral. So let's start. Firstly, we discuss about interior angles and exterior angles. Suppose we take a figure triangle. In this triangle, there are three angles. This one and this one. Name them. This one is angle 1, angle 2 and angle 3. So these three angles are inside the figure. So that's why these are called interior angles. Okay. So we can say that interior angles are angle 1, angle 2 and angle 3. Now what about the exterior angles? For that we will have to produce the sides. If I produce a particular side of this triangle like this one, I get one exterior angle of this triangle, which is this one. Okay. Similarly, if we produce all the rest sides of this triangle, so we get these three angles. Okay. So name them angle 4, angle 5 and angle 6. These angles are outside the figure, so we can say that these are exterior angles of the triangle. Angle 4, angle 5 and angle 6. Okay. So together this interior angle and exterior angle make one pair, and this pair is called linear pair, which is equal to the value of 180 degrees. So we can say that interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree. So for example, in this triangle we have angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 5, angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. Angle 2 plus angle 6 is equal to 180 degree. So what we found? We found that in triangle we have three linear pairs. In triangle we have three linear pairs. Okay. First one is this, second one is this and the third one is this. Okay. Similarly, in quadrilateral we have four linear pairs. Okay. We have four linear pair and each linear pair measured 180 degree. Okay. So conclusion is that we can say that there are n numbers of linear pair in n-sided polygon. What we can say कि हमारे पास n-sided polygon जो होता है जिसमें n-sided number of sides कितनी हो, n हो. n means कितनी भी हो सकती है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड सो ऑन. कि जितनी भी हमारे पास साइड्स होंगी पॉलीगन में उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स भी होंगे. ओके, कम टू द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. फाइंड x plus y plus z plus w in the figure. Figure is quadrilateral and here are angles x, z, y and w. Okay. So कैसे फाइंड आउट होगा? देखो ये सभी एंगल्स क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल्स हैं. ओके. एक्स, जेड, वाई एंड डब्ल्यू आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हम कैसे निकालेंगे इनको, थ्रू लीनियर पेयर. लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में थ्री एंगल्स गिवन है एंड फोर एंगल इज नॉट गिवन. सो फर्स्टली वी फाइंड आउट दिस एंगल एंड देन हम ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल ए. इन quadrilateral ABCD, interior angles, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Reason, angle sum property of quadrilateral. Angle sum property of quadrilateral. So एंगल ए हमारे पास नहीं है तो हम इसको एंगल ए रहने देंगे. देन एंगल बी इज 85 डिग्री, एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल डी इज
10 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये साइन दिया है, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, एंगल ए प्लस 85 प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल टू 285 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री minus 285 degree. Now angle A is equal to what? 75 degree. Okay? अब हमारे पास एंगल A भी आ गया। Now हम फिगर में क्या करेंगे? अब हम फिगर में अपने सभी एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x फाइंड करेंगे। x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। So x is equal to 180 degree minus 110 degree. So x is equal to 70 degree. Now the value of y plus 85 degree is equal to 180 degree. Same reason, linear pair, y is equal to 180 degree minus 85 degree. So y is equal to 95 degree. Now the value of z plus 90 degree is equal to 180 degree. Z is equal to 180 degree minus 90 degree. Z is equals to 90 degree. Now the value of x, y, z and the last one is w. W plus angle A, interior angle A, which we already find out, 75 degree is equal to 180 degree. The reason same, linear pair. Okay. So W is equals to 180 degree minus 75 degree. So W is equals to 105 degree. Now according to question, we have to find out what? X plus Y plus Z plus W. So we have the value of X, we have the value of Y, we have the value of Z, we have the value of 105. So add them. 70, X is 70. Y is 95 degree, Z is 90 degree and the last one W is 105 degree. So sum of all these angles is equal to 360 degree. Now next question, find A plus B plus C plus D plus E in the figure. Figure आपको ये दी हुई है, figure हमें क्या नजर आ रही है? पेंटागन. ओके, तो अब यहाँ पूछा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, इन सब का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले पेंटागन है तो हमारे पास इंटीरियर एंगल सारे होने चाहिए, तभी हम लीनियर पेयर से इन सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स को। तो हम ये चेक करते हैं, हमारे पास एंगल इंटीरियर एंगल ए भी है, बी भी है, सी भी है। ये साइन किसका है? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये भी है डी एंड ई हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से, बट यहाँ पे हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन फाइंड आउट करना पड़ेगा थ्रू द फॉर्मूला n-2 into 180. सो पेंटागन फिगर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स आर 5. सो पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला. 5 minus 2 into 180, this will get 540. ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास जो एंगल नहीं है, ई एंगल. ओके, नाउ इन पेंटागन ए बी सी डी, इंटीरियर एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 540. अभी हमने फाइंड आउट किया था ऊपर, 540 होता है पेंटागन के सभी एंगल्स का सम. सो दिस ऑल sum of all these interior angles is equal to 540. Angle A is 80 degree, angle B is 150 degree, angle C is 90 degree, angle D is 70 degree and angle E is हमें find out करना है. So this one is equal to 540. Now sum of all these angles is equal to 390 plus angle E is equal to 540. Then find the value of E is equal to 150 degree. Okay, अब हमारे पास एंगल E भी फाइंड आउट हो गया. नाउ हम जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं इसमें, एंगल ए, बी, सी, डी, ई, इन सबको कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्रू लीनियर पेयर. तो सबसे पहले हम एंगल ए को देखते हैं.
a plus 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने एंगल ए फाइंड आउट किया 100 डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल बी हम करेंगे, एंगल बी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी हम फाइंड आउट करेंगे, सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो सी इज 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली डी एंड सिमिलरली एंगल ई हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो हमारे पास a b c d e सभी एंगल्स आ गए हैं, सबका सम कर देंगे। ओके, वैल्यू पुट करके सबका सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 360 डिग्री। 360 डिग्री आया हमारे पास। अब हम एक चीज देखेंगे कि हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकाला तब हमारे पास 360 आया। अब यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पेंटागन का सम निकाला है तो भी हमारे पास कितना आया है 360 डिग्री। तो कंक्लूजन हमारा निकलता है कि हमारे पास क्या होता है, द सम ऑफ द मेजर्स of the exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हम किसी भी पॉलीगन में उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालें तो वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस करेंगे। Come to the next question. Find the measure of x in the given figure. Find the value of x. So इस given figure में हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। So how do we find? हम यहाँ यूज करेंगे पॉलीगन की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। So एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन is 360 डिग्री। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास इसमें 75 डिग्री, 135 डिग्री एंड x। तो इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास 360 डिग्री होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 75 प्लस 135 इज इक्वल टू 210 डिग्री। So 210 plus x is equal to 360, then x is equal to 360 degree minus 210 degree, x is equal to 150 degree. So now next, अब हमें next figure में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सेम ही चीज हम यूज करेंगे, sum of exterior angle of any polygon is equal to 360 degree. So same property we use, sum of exterior angles of any polygon is 360 degree. Okay, so इसमें हमारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ये साइन हमारा 90 डिग्री का है, so this angle is 90 degree. 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इन तीनों को ऐड कीजिए तो 90 प्लस 60 प्लस 105 इज इक्वल टू 255 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x is equal to 360 degree minus 255 degree. So x is equal to 105 degree. So इस तरह से हम अपने एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है।